Very good morning, my students. Uh, Welcome to my YouTube channel, Vishwa Academic. Today we are going to study class 10th subject English, Project First Flight. Lesson number 4 from the Diary of Anne Frank. From the Diary of Anne Frank, this lesson adapted from a famous novel of Anne Frank, The Diary of Young Girl. The Diary of Young Girl. The diary he got from his father on her 12th birthday on 12th June 1942. On this day, events happened in her life that is important, and she was born on 12th June 1929. Anne Frank was a Jewish girl. She was born on 20th June 1929. His father's name was Otto Frank. He was a very famous trader, and on July 1942, in hidden rooms in her father Otto Frank's office building, after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Virgin. Wilson Siwaj or his family, they were suffered after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupations extended into the Netherlands. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. As I explained, on her 13th birthday from his father until its final entry on 1st August 1944, it was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an open based on the diary. So this diary is very famous for anyone's. Anne Frank, who is the writer of this diary, the Diary of Young Girl. What is the importance of any diary in anyone's life? She find out that writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things on my chest. Means when she got the diary, so she started diary. Her diary name was Dear Kitty. मीन्स anyone who like उसकी डायरी का नाम जो है किट्टी था, जिसे वह जो है डियर किट्टी के नाम से जो है पुकारती थी. उसने जो है राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. वो जो स्टार्टिंग करती है कि डायरी लिखना जो है काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं जो है डायरी लिखती हूँ. वह जो है लिखती है अपनी डायरी में, और एक चीज़ और लिखती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल. मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोटेशन लाइन्स ऑफ हर. पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल. मीन्स लोगों की अपेक्षा जो है पेपर अधिक पेशेंस रखते हैं. मीन्स इफ यू वांट टू टॉक एनी थिंग्स और इफ यू एक्सप्रेस योर इंटरनल पावर, दैट टाइम्स यू एक्सप्रेस देम ऑन योर पेपर. सो पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was
feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Chin in my hands means when I am in anxiety or suffer from any tensions. That times I was like to write diary. उस समय मैं जो है लिखना जो है पसंद करती थी. Word and listless. Wandering. Listless means with no energy or interest. Wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference. Make a bit of difference means कोई थोड़ा भी जो है भिन्न नहीं था. तो Anne Frank find out that diary was her real friend. Anyone's book is the faithful or best friend for anyone. किसी के लिए भी जो है बुक जो है बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं. सेम वे हर डायरी वाज द फेमस फॉर हर. डायरी मीन्स डियर किटी इज रियल फ्रेंड फॉर हर विच हैज मोर पेशेंस फॉर एनी पीपल. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I do not have a friend. वह जो है अपने को जो है यानी कि किसी की अपेक्षा जो है अपनी डायरी को जो है वह जो है पहले स्थान पे रखती थी एज ए friend. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कौन विश्वास कर सकता है कि 13 इयर्स की ओल्ड गर्ल जो है वह जो है इस संसार में जो है अकेली रहती होगी या अकेली है. एंड आई एम नॉट. और वह कहती है कि मैं नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर. उसकी सिस्टर्स जो है उस समय जो है 16 इयर्स की थी. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड. वह जो कहती है कि 30 पीपुल से जिन्हें मैं जो है अपने फ्रेंड जो है पुकार सकती हूँ. पहले जो है ओटो फ्रैंक हु वाज द फादर ऑफ एने फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक एल्डर सिस्टर ऑफ एने फ्रैंक, एंड मार्गरेट फ्रैंक मदर ऑफ एने फ्रैंक, एंड अदर स्कूल फ्रेंड. बट सी felt that time alone, because if we not share anything to others or before any persons, that times we are alone. जब हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं या शेयर भी करते हैं तो सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो उस समय जो है वी आर एलोन. उस समय हम क्या होते हैं? अकेले होते हैं. सेम वे एने फ्रैंक रोट हियर वह लिखती थी, I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. Except यानी कि उनको छोड़ाकर केवल जो है वह जो है उसका ट्रू फ्रेंड थी जिसको वह जो है डियर किटी के नाम से पुकारती थी. यानी कि हर डायरी इज हर रियल फ्रेंड. अगेन वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट. I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We do not seem to be able to get any closure, and that is the problem. Maybe it is my fault that we do not confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. Confide means to tell personal things. Privilege means वह जो है कहते हैं कि we do not seem to be able to get any closure. हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे की क्लोजर जो है नहीं पाते थे. कब? when there are 13 he considered 13 friends with her and his family as father, mother, sister, cousins and aunt and uncles. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do.
but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. मीन्स वह कहती है कि टू इनहेंस द इमेज, कल्पना करने पर ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में जो है जो इंतजार करते हुए लंबे यह मित्र, आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, इस डायरी में जो है फैक्ट वो ना हो द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, जैसा कि अन्य लोग जो है करेंगे, बट आई वॉन्ट द डायरी टू माई फ्रेंड, अपनी डायरी को जो है वह जो है अपने फ्रेंड के रूप में कहती है, एंड कॉल इट किट्टी, और उसे जो है अपनी डायरी को जो है किट्टी के नाम से पुकारती है। नेक्स्ट, सिंस नो वन कुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, आई बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। मीन्स आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करना जब मुझे अपसंद होता है तो मैं अपनी लाइफ की जो है एक ब्रीफ स्केच जो है खींचना जो है पसंद करूँगी, और दैट इज राइट। नेक्स्ट, माई फादर द मोस्ट एडरेबल फादर आई हैव एवर सीन did not marry my mother until he was 36 and she was 25। मीन्स फादर ये जो है वो बताती है कि वह जो है फादर जो है उसके फादर 36 के दिखाई देते हैं, और जबकि उसकी मदर जो है 25 की जो है दिखाई देती है, एंड शी हैज ए एल्डर सिस्टर हुज नेम वाज मार्गरेट फ्रैंक एंड his mother name was Edith Frank. Okay, now again, my sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. वह जो है फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक कि वह जो है 4 साल की नहीं हुई, एंड माई फादर इमिग्रेट, इमिग्रेट मीन्स प्रस्थान करना या इमिग्रेट प्रवास करना, इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिता जो है अपने ऑक्यूपेशन से व्यवसाय की वजह से जो है हॉलैंड चले गए इन 1933 में। 1933 माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड in September, while Margaret and I were sent to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February. Then I was plunked down on the table as birthday present for Margaret. Plunked down means an informal word put down in a casual way, यानी कि वह जो है plunked down means किसी भी इनफॉर्मल वर्ड का यूज करते हुए जो है वह जो है डाउन हुई ऑन द बर्थडे ऑफ मार्गरेट। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब तक कि वह जो है 6 की नहीं हुई थी तब तक जो है मॉन्टेसरी स्कूल नर्सरी स्कूल में जो है वह सही थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in tears as we said a tear-breaking farewell. जब हम जो है ब्रेकिंग यानी कि फेयरवेल कर रहे थे उस समय जो है माई हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूप्रस was the Mrs. Cupress was the headmistress of Montessori Nursery School. In the summer of 1941, Grandma fell ill and have an operation, so my birthday passed with little celebration. And 1941 में जो है in 1941 में when her grandmother was suffering in that time, his birthday was celebrated in short or little in 1941. Grandma died in January 1942. No one knows. Often I think of her and still love her. कोई नहीं जान सकता कि
मैं क्यों समझ सकती हूँ कि मैं उनसे जो है कितना जो है प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंड टू मेक लाइफ फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमॉज कैंडल वॉज लाइट अलॉन्ग विथ द रेस्ट। वह जो है बाकी सभी फ्रेंड थे, लेकिन किसी एक की कमी जो है फील की जा रही थी, और वह गैप जो था वह जो है ग्रैंड माँ का था। और इन द ट्रिब्यूट ऑफ हर ग्रैंड मदर सी लाइट ए कैंडल ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ हर केक टेबल। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस मीन्स सी, हर डैडी, सी, हर mother, grandmother and her father. The four of us are still doing well, and that brings to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn means एकांतवास और dedication means समर्पण. Solemn means loneliness. डेडिकेशन ऑफ माई डायरी वह जो है 20 जून 1942 था, जब मेरा जो है एकांतवास जो है समर्पण मेरी डायरी के साथ जो है समाप्त हुआ। और वह जो है स्टार्ट करती है अपनी डायरी को जो है फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट की डियर किटी ऑन 20 जून लिखी। सैटरडे पहले ही अपनी, जैसे कि सभी लोग अपनी डायरी पे जो इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे ही वो अपनी डायरी पे लिखती है ऑन सैटरडे 15 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्विकली, यस, आवर इंटायर क्लास इज क्विकली क्विकिंग इन इट्स books. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decides who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Bets means sir. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holidays and saving on their bed from morning to night. It is you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even GS pleading glances and my angry outburst cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. Quarter of the class means 1/4. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. Important line: teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Means on that day she write first जो है some importance here. Align teachers are the most predictable. Teachers are the most unpredictable creatures on earth. Means after exam most of the students were gathered in their classrooms and they were talking. उनमें जो है शर्त लग रही थी, यह शर्त लग रही थी कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन जो है बैक आएगा। यह इमेजिन किए थे कि 1/4 यानी कि क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स 1/4 स्टूडेंट्स। 1/4 मीन्स द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय 1/4 they back to the students. So टीचर्स मीटिंग was going on. टीचर्स मीटिंग जो है जारी थी और उसमें जो है उसने बताया कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो है टीचर्स जो है सबसे अनप्रेडिक्टेबल जो है प्राणी होते हैं। सो आई एम नॉट सो worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. किसी भी प्रकार से हम इंतजार कर सकते थे। Until then, we kept telling each other not to lose heart.
किसी भी प्रकार से कोई भी जो है प्रोटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से, नॉट लूज हर्ट, कोई भी जो है अपना जो है साहस न खोए। आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old Foji means old-fashioned person. Mr. Kissing, the old Foji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. Means she explained about the I am not worried, मैं चिंतित नहीं थी, लेकिन मुझे जो है एनीवे मैथ्स में जो चिंता थी, बिकॉज वह जो है मैथ में, क्योंकि किसिंग जो कि टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे एंड ओल्ड फैशन टीचर, उनसे वह जो है ज़्यादा जो है टॉक करती थी, और वह जो है मिस्टर किसिंग जो है उसे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। और वंस टाइम्स उन्होंने दिया था राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पे जो है लिखने के लिए जो उन्होंने जो है ऐसे दिए थे मिस्टर किसिंग वाज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग वाज द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एन ए फ्रेंड। दैट इवनिंग उस सब आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. च्यूइंग जैसे कि सब लोग जो है ट्रबल होते हैं बच्चे, तो अब पेंसिल या पेन को जो है अपने जो है च्यू करते हैं, तो उसी तरह से वह जो है अपने अदर्स होमवर्क पूरा करने के बाद जो है उस सब्जेक्ट पे जो है विचार करना स्टार्ट की। एनीवन कुड रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बिना उद्देश्य के जो है लिखना या बातें करना जो है लंबा जाता है, वह जो है लिखना है स्टार्ट की। बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। अचानक जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे या कुछ सोचना, तो अचानक जो है कोई ना कोई जो है आइडिया आ ही जाता है। सेम वे शी रोट, वह लिखी कि आई हैड एन आइडिया, आई रोट द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जैसा कि उन्होंने जो है मुझे असाइन किया था, मैंने जो है 3 पेजेज लिखे एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थी। आई argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. Means talking, बातें करना जो है वो मानती कि बातें करना इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, स्टूडेंट्स का जो है एक ट्रेट होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और इसमें मैं जो है बेस्ट करूँगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वह जो है कंट्रोल में होगा। But that I would never be able to cure myself of habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited trait. Inherited trait means जो कि आपको जो है फिजिकल और मेंटल तरीके से जो है एक पेरेंट से जो है प्राप्त होती है, मीन्स वंशज। तो जैसा कि उसने जो है लिखी है कि एडिथ फ्रैंक, उसकी मदर जो है जितना बातें करती थी, शायद उससे अधिक हुआ नहीं, लेकिन उसके कम जो है वह जो है बातें करती थी, और यह जो है इनहेरिटेड ट्रेट्स हो सकता है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, बट व्हेन आई proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox means something that cannot be corrected. कुछ चीज़ें जो है करेक्ट नहीं हो सकती। I handed it in, मैंने उसे जो है हाथों में लिया, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally
had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. उन्होंने जो है 2 लेसन उसमें जो है दिखाया है कि 2 लेसन्स तक जो है मैंने कुछ नहीं किया, यानी कि बिल्कुल क्वाइट रहा, लेकिन 3rd लेसन जैसे ही स्टार्ट हुआ उन्होंने जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और उन्होंने जो है लिखा क्लास राइट एन एसे इन टाइटल एने फ्रैंक एज पनिशमेंट। एने फ्रैंक पनिशमेंट के रूप में जो है तुम्हें जो है फॉर टॉकिंग इन बात करने में राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। नेक्स्ट है द क्लास रोड मीन्स गर्जना यानी कि आवाज़ करना। आई हैड टू लाफ टू, मुझे जो है उतना हंसना पड़ा काफ़ी अधिक। दो आई वुड नियरली एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स होता है ओरिजिनली एंड इन्वेस्टिगेशन सॉरी भयभीत करना। माई इंटेजिनिटी मीन्स इन्वेस्टिगेशनिस्ट और ओरिजिनलिटी वास्तविकता ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स। It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, उसका फ्रेंड जो है Sane, who is good at poetry, वह जो पोएट्री लिखने में जो है अच्छा था। Who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in the words in वर्ज मीन्स होता है पद, यानी कि पोयम में कुछ चीज़ें जो है पद में लिखने के लिए जो है इसमें जो है कहा वर्ज। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं जो है आनंद के लिए जो है उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस कठिन सब्जेक्ट के साथ जो है उन्होंने जो है मेरे साथ जो है जोक करने का प्रयास कर रहे थे। बट आई टू मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, किंतु मैं जो है बनाई गई जोक वाज ऑन हिम, उन्हीं के ऊपर। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने जो है अपना पोयम जो है फिनिश किया, और फिनिश करने के उन्होंने जो है जब फिनिश की पोयम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily Mr. Kissing took the joke the right way. Means उसने जो है पोयम में क्या दिखाई कि फिनिश्ड माई पोयम, उसने जो है पोयम में लिखा है इट वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह जो है मदर डक, फादर स्वान एंड देयर 3 चिल्ड्रेन ट्विंकलिंग, 3 चिल्ड्रेन डकलिंग में थी। यह जो है हु वेयर बीटेन टू डेथ, वह जो है पीटे गए बाय द फादर के द्वारा, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वे अधिक जो है बातें करते थे, उनका जो है आवाज़ है क्वैक, यानी कि वे अधिक बातें करने के लिए जो है फादर्स के द्वारा जो है पीटे गए। लकली सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग यह जो जोक था मिस्टर किसिंग पे जो है वह जो है सही तरीके से बैठा। ही read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. मीन्स यह पोएम जो है पूरे क्लास को जो है हंसी के लिए लिया, और एक अपना जो है कमेंट दिए उन्होंने जो है सेवरल अदर क्लासेज एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन, उसके बाद जो है सिंस देन तब इसके बाद आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे जो है आज्ञा दी गई बातें करने की उनके द्वारा मिस्टर किसिंग के द्वारा, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। ऑन द कंट्री संक्षिप्त में मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और इन दोनों के बाद जो है हमेशा जो है मिस्टर किसिंग का जो है जोक जो है बनता रहा। इन दिस वे
this lesson has been finished. Means in simple way, what you want to write any times, anything, and what your idea, you put their ideas, their plan in your diary. So diary is a very important for anyone's life. एज एन फ्रैंक रोट अ डायरी, जैसा कि एन फ्रैंक ने डायरी लिखी, और इसी तरह वो बताते हैं 2 इम्पॉर्टेंट लाइन जो है उन्होंने, फर्स्ट जो है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, और सेकेंड जो है टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ऐसे कुछ जो है चीज़ें जो है आप जो है अपनी डायरी में जो भी आइडिया आता है, जो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।